کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج پھر میں حاضر ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کے ساتھ، ایسی کہانی جو آپ کے دل کو چھو لے گی۔ انایا پلیز نا، یہ ڈریس دلا دے، مان جاؤں گی کہ تو واقعی کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے۔ آشی کی منت بھری آواز پر انایا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ تیری یہ عادت ایک دن مجھے جیل بھجوا دے گی، لیکن آج تو میری عزت کا سوال ہے۔ وہ لیوینڈر کلر والا سوٹ مجھے چاہیے اور میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں۔ انایا نے گہرا سانس لیا، پھر نظریں شو روم کے شیشے سے باہر دوڑائی۔ پارکنگ میں ایک سیاہ لگژری گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی سے ٹیک لگائے ایک لمبا، وجیح اور باوقار نوجوان فون پر مصروف تھا۔ سفید شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھی، چہرے پر سنجیدگی اور انداز میں عجیب سا روب تھا۔ انایا کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ مجبور کر رہی ہے اپنی مسکین شکل سے، اب لگتا ہے یہ مرغا پھنسانا ہی پڑے گا۔ اس کی بات پر آشی نے کہا لگایا، بس ڈرامہ ایسا کرنا کہ آسکر مل جائے۔ انایا نے اپنی سانس ہموار کی۔ چند لمحوں میں اس کے چہرے سے شرارت غائب ہو چکی تھی، آنکھوں میں نمی، ہونٹوں پر کپ کپاہٹ اور لہجے میں بے بسی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس نوجوان کے قریب گئی۔ سر پلیز سنیے۔ اس نے فون کان سے ہٹایا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جی؟ میری ماں ہسپتال میں ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے ابھی آپریشن نہ ہوا تو۔ اس کی آواز رند گئی۔ 5 لاکھ چاہیے سر، خدا کے لیے مدد کر دیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اس کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے جیب سے ایک چیک بک نکالی، دستخط کیے اور چیک اس کی طرف بڑھا دیا۔ انایا کو پہلے تو یقین نہ آیا، مگر چیک ہاتھ میں لیتے ہی اس کے بدن میں پھریری دوڑنے لگی۔ 5 لاکھ روپے کا چیک اس کی ہتھیلی پر تھا۔ وہ بے اختیار لرزتی آواز میں بولی، تھینک یو سر۔ تو اس نے صرف ہلکا سا سر ہلایا۔ سر آپ کا نام؟ آریز خانزادہ۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی، انایا دوڑتی ہوئی آشی کے پاس پہنچی۔ آشی دیکھیے کیا ہو گیا، دیکھ 5 لاکھ۔ آشی نے چیک دیکھا اور خوشی سے چیخ ماری، نہ کر یار، یہ تو سچ ہو گیا۔ 5 لاکھ کا چیک؟ قسم سے تو جینیس ہے۔ دونوں کے کہے پورے مال میں گونجنے لگے۔ چند ہی منٹ بعد ان کے ہاتھوں میں لدے پھدے شاپنگ بیگز تھے۔ سب سے پہلے آشی نے وہی لیوینڈر کا سوٹ خریدا جس پر اس کی نظر کئی دنوں سے تھی، پھر اس کے ساتھ میچنگ ہیلز، ایک نفیس کلچ اور باریک نگوں والی بالیاں بھی لے ڈالی۔ انایا بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی، اس نے گرین لانگ میکسی پسند کی، پھر سفید امبرائڈری والا کرتا، ڈھیروں شرٹس اور جینز کی پینٹس اور ایک خوبصورت برانڈڈ گھڑی۔ یہ بھی لے لوں؟ اس نے سن گلاسز پہن کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ آشی نے فوراً انگوٹھا اوپر کیا، لے آج تو قسمت مہربان ہے۔ دونوں ایک دکان سے دوسری دکان پھرتی رہیں۔ کافی دیر بعد وہ جیولری سیکشن میں پہنچی۔ انایا سونے کا بریسلیٹ دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ لوگ اپنی اپنی خریداری میں مصروف تھے، کوئی خاص بات نہیں تھی، پھر بھی اسے عجیب سا احساس ہوا جیسے کوئی مسلسل اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی۔ کیا ہوا؟ آشی نے پوچھا۔ انایا نے دھیرے سے کہا، پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کوئی ہمیں مسلسل گھور رہا ہے۔ آشی نے فوراً ادھر ادھر دیکھا، پھر بے پرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ تجھے وہم ہو رہا ہے، اتنے بڑے مال میں کون فارغ بیٹھا ہے جو ہمیں دیکھتا پھرے؟ نہیں، احساس عجیب سا ہے۔ اس کی چھٹی حس گواہی دے رہی تھی۔ اوہو پلیز، فلمیں کم دیکھا کر، چل آئس کریم کھاتے ہیں۔ انایا نے ایک بار پھر پیچھے دیکھ کر خود کو سمجھایا کہ شاید واقعی وہم ہے۔ دونوں فوڈ پوائنٹ میں جا بیٹھی۔ آئس کریم کھاتے ہوئے وہ آئندہ خریداری کی پلاننگ کرتی رہی۔ شام ڈھلنے لگی تو وہ خوشی خوشی مال سے باہر نکلی۔ آج کا دن یادگار تھا۔ آشی نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر ہر ہفتے ایسا ایک مرغا مل جائے تو زندگی سنور جائے۔ انایا نے ہنستے ہوئے اس کے بازو پر ہلکی سی چپت لگائی۔
बस कर, लालच बुरी बला है। वो अभी पार्किंग की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक एक स्याह SUV तेजी से उनके करीब आ रुकी। ब्रेकों की तेज चुरचुराहट सुनकर दोनों चौंक गई। दरवाज़ा खुला। 4 मजबूत जिस्म वाले आदमी तेजी से नीचे उतरे। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाती, फ्रंट सीट पर बैठे एक आदमी की गरजदार आवाज़ फजा में गूंजी, गुलाबी जोड़े वाली फ्रॉडन को गाड़ी में डालो। अनाया और आशी के कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए। अगले ही लम्हे गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर आरेज खानजादा बाहर निकला, जिसकी आंखों में हल्की सुर्खी थी। अनाया का दिल एकदम सीने में धड़कना भूल गया। उसे अचानक समझ आया, मॉल में उसे कोई वहम नहीं हो रहा था, वाकई कोई उन्हें मुसलसल देख रहा था, और वो शख्स आरेज खानजादा था। अनाया भाग! आशी ने उसका बाजू पकड़कर खींचा, मगर इससे पहले कि वो दोनों पलटती, 4 लंबे तड़ंगे आदमी बिजली किसी तेजी से उनके गिर्द हिसार बना चुके थे। अनाया ने एक लम्हे के लिए आरेज की तरफ देखा। वो चंद कदम के फासले पर गाड़ी से टेक लगाए इत्मीनान से खड़ा था। फिर उसने लाइटर निकाला, सिगरेट सुलगाया और इसकी तरफ देखकर एक गहरा कश लेकर धुआं हवा में उड़ा दिया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई अपने शिकंजे में जकड़ ली, तो वो किस्मसाकर बोली, छोड़ो। उसने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने की कोशिश की और दूसरे हाथ से उस आदमी को धक्का दिया, मगर वो खड़ा रहा जैसे पत्थर की दीवार हो। आशी! वो पूरी कुव्वत से चीखी। आशी आगे बढ़ने ही वाली थी कि एक और आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने कुछ कहा नहीं, सिर्फ सुर्ख होती आंखों से इसे घूरा। वो निगाह इतनी सख्त थी कि आशी के होंठों तक आई चीख वहीं दम तोड़ गई। उसका खुला हुआ मुंह बंद हो गया। वो बेबसी से अनाया को देखती रह गई। अनाया मुसलसल मुड़ मुड़ कर अपनी कज़न को देख रही थी। आशी, कुछ करो प्लीज़ आशी! वो चीखने ही वाली थी कि अचानक एक मजबूत हथेली ने उसका मुंह बुरी तरह ढांप लिया। उसकी आवाज़ हलक में ही घुट कर रह गई। अगले ही लम्हे उसे तकरीबन उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर धकेल दिया गया। वो मुंह के बल सीट पर गिरी। हाथों से खुद को संभालने की कोशिश की ही थी कि खट से गाड़ी का दरवाज़ा बंद हो गया। अनाया ने घबराकर सर उठाया। उसके दाएं और बाएं 2 ऐसे आदमी बैठे थे जिनके चौड़े कंधे और मजबूत जिस्म देखकर ही अंदाज़ा हो रहा था कि अगर वो चाहें तो एक हाथ से इसे काबू कर सकते हैं। इसका गला खुश्क हो गया, सांस जैसे सीने में अटक गई। उसके माथे पर पसीने के कतरे उभर आए। अगले ही लम्हे गाड़ी ने एक झटका खाया और पूरी रफ्तार से मेन रोड पर आ गई। टायरों की रगड़ की आवाज़ के साथ SUV ट्रैफिक चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। बाहर की इमारतें, साइन बोर्ड, गाड़ियाँ सब धुंधले होते जा रहे थे। अनाया को यकीन हो गया था फरार के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। उसने हिम्मत जमा की, नज़र आहिस्ता से सामने वाली सीट पर गई। आरेज खामोश बैठा था। उसने एक बार भी मुड़कर इसे नहीं देखा। सुनिए सर, मुझे माफ़ कर दें, मुझे छोड़ दें। उसकी आवाज़ कपकपाती हुई गाड़ी के अंदर गूंजी, मगर कोई जवाब ना मिले, जैसे सब बहरे बैठे थे। प्लीज़ मुझे छोड़ दें, प्लीज़, मैं आइंदा कभी। उसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि गाड़ी अचानक एक ज़ोरदार झटके से रुकी। अनाया का वजूद आगे को लड़खड़ा गया। उसने शीशे से बाहर देखा। सामने एक बहुत बड़ा लोहे का गेट था। चंद सेकंड बाद वो खुदकार अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। गेट के पीछे एक वसी और रीज गैराज नुमा वर्कशॉप थी। गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। जूं जूं वो आगे बढ़ रही थी, अनाया की धड़कन भी तेज़ होती जा रही थी। मुस्ततील नुमा ये खाली गैराज था, मगर जा बजा पुर्जे और टूल बॉक्स बिखरे पड़े थे। छत से लटकते बल्ब की मरियल सी रोशनी नाकाफ़ी थी, जो इस जगह को मज़ीद हैबतनाक बना रही थी। अनाया के हाथ ठंडे पड़ने लगे। या अल्लाह! उसके लब बेख्तियार हिले। गाड़ी आखिरकार रुकी। एक लम्हे के लिए हर तरफ मुकम्मल सकूत छा गया। फिर दोनों दरवाजे एक साथ खुले। उसके दाएं और बाएं बैठे आदमी फौरन बाहर निकले। उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। चंद कदम चलकर वो गैराज के दूसरे हिस्से की तरफ चले गए। अब गाड़ी में सिर्फ अनाया और वो था। गाड़ी का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। आरेज गाड़ी से बाहर निकला। उसने सर से अपनी कैप उतारी तो उसके घने बाल बिखर कर माथे पर फैल गए। उसकी नज़रें सीधी अनाया पर जमी थी। वो बेख्तियार सीट के साथ मज़ीद सिमट गई। उसके कानों में आरेज की भारी
पुरसकून आवाज गूंजी, नीचे उतरो। अनाया ने नफी में सर हिलाया। प्लीज, उसकी आवाज बमुश्किल निकली। आरिस ने एक लम्हा उसे देखा, फिर पहले से भी ज्यादा सख्त लहजे में बोला, मैंने कहा नीचे उतरो। उसने खुश्क होते होंठों पर जबान फेरी, लरसते हाथों से दरवाज़ा पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर गई। उसने सर उठाकर आरिस की जानिब देखा, जो दोनों हाथ सीने पर बांधे निहायत इत्मीनान से उसे घूर रहा था। अनाया के हाथ पांव फूल गए। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हट गई। उसी लम्हे आरिस ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ज़्यादा घबराने और एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कितनी पहुंची हुई सरकार हो तुम। उसकी आवाज़ में अजीब सा ठहराव भरी सख्ती थी। अपना ऐसा तारुफ सुनकर अनाया रोना ही भूल गई। उसने पलकें झपकाई और हैरत से उसे देखने लगी। क्या मतलब? आरिस ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा असल बात पर आया। अभी और इसी वक्त मेरे 5 लाख वापस करो। अनाया के चेहरे का रंग यकायक उड़ गया। 5 लाख? जी हाँ, वही 5 लाख जो तुमने अपनी मरती हुई माँ के नाम पर मुझसे लिए थे। उसकी गर्दन खुद ब खुद शर्म से झुक गई। मेरे पास 5 लाख तो नहीं है। शायद, उसने हिचकिचाते हुए कहा, 50,000 के करीब होंगे। आरिस ने एक लम्हा उसे देखा, फिर संजीदगी से पूछा, तो खूब शॉपिंग की तुमने? अनाया खामोश रही। कुछ खाया भी था या सारे पैसे सिर्फ फजूल चीज़ों पर उड़ा दिए? वो इतने सुकून से पूछ रहा था कि अनाया को उसकी दिमागी हालत पर शुबा होने लगा। वो डांट भी सकता था, चीख भी सकता था, मगर वो तो ऐसे बात कर रहा था जैसे किसी दोस्त से रोज़मर्रा की गुफ्तगू हो। इसे कुछ तसल्ली हुई तो वो हिम्मत करके बोली, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। आरिस ने भवें उचकाई। ओह रियली? वो चंद कदम चलता इसके सामने आकर रुका। कहाँ से वापस करोगी? अनाया खामोश थी। कोई जॉब करती हो? नहीं। कोई बिजनेस? नहीं। तो फिर? वो नजरें चुराने लगी। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। क्या? इसके पास जवाब नहीं था। आरिस ने एक लंबी सांस ली। चलो आसान सवाल करता हूं। वो उंगलियों पर गिनने लगा। कोई जमीन? नहीं। कोई जायदाद? नहीं। कोई मिल, फैक्ट्री या प्लाजा? अनाया ने बेबसी से उसे देखा, फिर मिनमिनाते हुए बोली, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, ये सब हमारे पास नहीं होता। अच्छा। वो तंजिया सा मुस्कुराया। कोई जेवरात? नहीं। वो भी नहीं, ये भी नहीं। आरिस फिर मुस्कुराया। तो फिर आखिर किस बलबोते पर मुझे लारे लगा रही हो मैडम? उसकी सर्द नजरें सीधी अनाया की आंखों में झांकी तो अनाया को यूं महसूस हुआ जैसे पूरे जिस्म में च्यूंटियां रेंग गई हों। आप मुझ पर यकीन करें प्लीज, वो बेख्तियार बोली। मैं वाकई वापस कर दूंगी। आरिस हल्का सा हंसा। मैं और तुम पर यकीन करूं? उसके लहजे में काट थी। जिस लड़की ने 5 मिनट में अपनी मरती माँ के नाम पर अय्याशी की, उस पर? अनाया शर्मिंदगी से नजरें झुका गई। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर आरिस ने जेब से मोबाइल निकाला। अच्छा, एक डील करते हैं। अनाया ने चौंक कर सर उठाया। कैसी डील? तुम 1 माह मेरे साथ रहो। वो बिल्कुल सादा लहजे में बोला। और मैं अपने 5 लाख भूल जाऊंगा। अनाया की आंखों में फौरन गुस्सा उतर आया। आपका दिमाग ठीक है? बिल्कुल। मैं क्यों रहूं आपके साथ? ये तुम्हारा मसला है। बगैर निकाह के कैसे रह सकती हूं मैं? वो गुस्से से बोली। आरिस ने शाने उचकाकर आराम से कहा, तो निकाह कर लेते हैं। इतनी बेपरवाही से कही गई बात ने अनाया के तन बदन में आग लगा दी। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तकरीबन चीख उठी। मैं आपसे निकाह करूं? कभी नहीं। ठीक है। आरिस ने फौरन मोबाइल अनलॉक किया। फिर दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। उसने एक नंबर डायल करना शुरू किया। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो किसको कॉल कर रहे हैं? पुलिस। उसने नजरें मोबाइल पर ही रखी।
फ्रॉड का केस है। अनाया के चेहरे का रंग उड़ गया। 1 घंटा भी हवालात में रहोगी ना तो सारे कस बल खुद ही निकल जाएंगे। आरेज सर्द लहजे में कहता हुआ एक कदम उसके करीब आया। मेरे 5 लाख भी वापस करोगी और जो इज्जत अफजाई होगी वो अलग। फिर उसने मायने खेज निगाह से इसे देखा तो अनाया का पूरा वजूद कांप उठा। नहीं, उसने घबराकर आगे बढ़ते आरेज के मोबाइल वाले हाथ को दोनों हाथों से पकड़ लिया। प्लीज, उसकी आवाज़ टूट रही थी। प्लीज पुलिस को मत बताइए। वो बुरी तरह खौफजदा थी। आरेज ने एक लम्हा उसके लरसते हाथों को देखा, फिर उसकी आंखों में झांका। तो फिर निकाह? अनाया की पलकें भीग गई। आखिरकार उसने आहिस्ता से सर झुका दिया। मुझे कबूल है, उसकी आवाज़ बमुश्किल निकली। आरिज ने खामोशी से मोबाइल लॉक किया, जेब में रखा और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी नाकाबिले फहम मुस्कुराहट उभरी। अच्छा फैसला किया है मिस। आपका नाम? अनाया। मुझे आरेज खानजादा कहते हैं। नाम तो याद होगा ना? अनाया ने सर उठाकर उसे देखा, जिसकी आंखों में सर्द मेहरी थी। उसने दिल ही दिल में सोचा, ये 1 महीने का मुआहदा है, बस 1 महीना, फिर उसके बाद ये आदमी मेरी जिंदगी में नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो अपने आप को खुद ही तसल्ली देने लगी, मगर दिल की घबराहट थी कि किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक आरेज गैराज से बाहर चला गया। वर्कशॉप में अब खामोशी इस कदर गहरी थी कि अनाया को अपनी धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थी। वो कुर्सी पर बैठी दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर बार बार मरोड़ रही थी। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा दोबारा खुला। उसके दोनों आदमी एक मुअम्मर शख्स के साथ अंदर दाखिल हुए। सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद शलवार, सर पर सफ़ेद अमामा, हाथ में रजिस्टर और एक पेन। अनाया ने उन्हें देखते ही बेख्तियार सांस रोक ली। वो मौलाना थे। अगले ही लम्हे उसका दिल जैसे रुक कर चलने लगा। ये मजाक नहीं था, वो वाकई से निकाह करने जा रहा था। मौलाना साहब ने खामोशी से सबको सलाम किया और सामने रखी कुर्सी पर जा बैठे। थोड़ी देर बाद आरेज भी आ गया। उनके सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। अनाया अभी तक साकित खड़ी थी। बैठो, आरेज ने मुख्तसर सा हुक्म दिया। उसने लरसते कदमों से आगे बढ़कर कुर्सी संभाल ली। मौलाना साहब ने रजिस्टर खोला ही था कि आरेज ने हाथ के इशारे से उन्हें चंद लम्हे रुकने को कहा। फिर उसकी नज़रें सीधी अनाया पर जम गई। एक बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो। उसका लहजा हमेशा की तरह पुरसकून था, मगर उस सकून में अजीब सी सख्ती थी। ये निकाह सिर्फ 1 माह के लिए है। अनाया ने पलकें उठाकर उसे देखा। 1 माह बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मजीद बोला, लेकिन इस 1 माह में तुम मेरी बीवी होने का किरदार मुकम्मल तौर पर अदा करोगी। उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा संजीदा हो गई। और अगर इस दौरान तुमसे ज़रा सी भी ऐसी गलती हुई जिससे मेरा मंसूबा ख़राब हुआ, तो तुम जानती हो कि पुलिस वाला ऑप्शन अब भी मेरे पास मौजूद है। अनाया के हाथ बेख्तियार कांप गए। और पुलिस फ्रॉड करने वालों के साथ क्या करती है, ये शायद तुम मुझसे बेहतर जानती हो। अनाया की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए। वो सिर्फ उसे देखती रही। ना एहतजाज, ना बहस, ना इनकार, सिर्फ खामोश नज़रें जिसकी इल्तिजाएं आरेज बड़ी बेदर्दी से इग्नोर कर चुका था। क्या तुम्हें यह सब मंजूर है? आरेज ने आखिरी बार पूछा। अच्छी तरह सोच लो। उसने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाई। बाद में मत कहना कि मुझे शराइत का पता नहीं था। इसके होंठों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट आई, फिर धमकाते बोला, मैं जानबूझकर गलती करने वालों को माफ़ नहीं करता। अनाया ने नजरें झुका ली। चंद लम्हे गुजर गए, फिर उसने बमुश्किल हिम्मत करके पूछा, पक्का आप 1 माह बाद मुझे छोड़ देंगे? इस सवाल में खौफ भी था, बेयकीनी भी थी और एक अजीब सी उम्मीद भी। आरेज खामोशी से उसे देखता रहा, फिर पूरे यकीन से बोला, बिल्कुल पक्का, 1 माह पूरा होते ही तुम आज़ाद होगी। अनाया ने आंखें बंद कर लीं, फिर उसने आहिस्ता से सर हिलाया। मौलाना साहब ने रजिस्टर अपनी तरफ खींचा, निकाह की कार्रवाई शुरू की। चंद ही मिनटों में उनके दरमियान वो रिश्ता कायम हो गया जिसके लिए लोग बरसों ख्वाब देखते हैं। और यहाँ
दो अजनबी सिर्फ एक मुआहदे की वजह से मियाँ बीवी बन चुके थे। मौलाना साहब ने दुआ करवाई। दुआ ख़त्म होते ही आरेज ने पर्स निकाला और एहतराम से मौलाना साहब के हाथ पर हक की खिदमत के तौर पर कुछ रकम रख दी। मौलाना साहब ने रजिस्टर बंद कर दिया और दोनों आदमियों के साथ कमरे से बाहर चले गए। अब गैराज में सिर्फ आरेज और अनाया रह गए थे। तुम चाहो तो अपने घर वालों को इत्तला दे सकती हो, बाद में कोई मसला ना हो। ये सुनते ही अनाया का चेहरा एकदम बुझ गया। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोली। घर में उसकी आवाज़ रुंध गई। कोई ऐसा नहीं जो मेरी फिक्र करे। कमरे में चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। पहली बार आरेज के मुंह से बेख्तियार निकला, मतलब? अनाया ने निगाह उठाई, फिर खोई खोई लहजे में कहा, अगर मैं 2 दिन भी घर ना जाऊं। उसने नजरें झुका ली, तो शायद किसी को भी फर्क ना पड़े। आरेज कुछ लम्हे खामोश रहा। तुम्हारे माँ बाप? मैं यतीम हूँ। माँ बाप क्या मरे, सारे रिश्ते मर गए। चचा ने एहसान करते हुए मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दी। बात करते करते इसकी आंखों से एक आंसू टपका और गालों पर फैल गया। मगर अब शायद वो घर सुखी होगा, क्योंकि मेरे बोझ से अब वो आज़ाद हो गए होंगे। आरेज ने उसे गौर से देखा और फिर मेज़ पर रखी गाड़ी की चाबी उठाई। चलो, उसने मुख्तसर सा कहा। अनाया ने हथेली से अपने आंसू पोंछे। उसे यूं महसूस हुआ जैसे चंद मिनट पहले उसकी ज़िंदगी का एक बाब बंद हुआ है और अब वो एक ऐसी कहानी में कदम रखने जा रही है जिसका अंजाम वो खुद भी नहीं जानती थी। उसने गहरी सांस ली और आरेज के पीछे चल पड़ी। इस छोटी सी ब्रेक के लिए बहुत माजरत, लेकिन अब ये बताइए, क्या अनाया किसी मुसीबत में फंस गई थी या फिर उसकी ज़िंदगी में जो मोड़ आया था वो उसे किसी बेहतर मुकाम पर ले जाएगा? क्या आरेज उसके दुखों का मदावा कर सकेगा? ये सब कुछ हमें कहानी के अंजाम पर ही मालूम होगा। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की जानिब। रात काफ़ी ढल चुकी थी जब स्याह SUV शहर के पोश इलाके में वाक़या एक शानदार हवेली के सामने आ रुकी। ऊंचा आहनी गेट खुदकार अंदाज में खुला और गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। दोनों तरफ सजे फूल, सब्ज़ा, संगे मरमर की रोशनी और बीचों बीच खड़ी 3 मंजिला हवेली। अनाया ने खिड़की से बाहर झांका तो बेख्तियार उसकी आंखें फैल गई। इतना बड़ा घर? वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई। गाड़ी पोर्च में रुकी। आरेज खामोशी से नीचे उतरा। अनाया ने एक लम्हा उसकी तरफ देखा, फिर गहरा सांस लेकर खुद भी बाहर आ गई और खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। वसी ड्राइंग रूम की तरफ कदम बढ़ते ही अंदर से एक गर्म जोश मगर पुरवकार आवाज़ सुनाई दी। आ गए तुम आरेज? सामने सोफे पर तकरीबन 70 बरस की एक बावकार खातून बैठी हुई थी। सफ़ेद बाल निहायत नफासत से बंधे हुए, हल्के सुनहरी फ्रेम का चश्मा, हाथ में तस्बीह और चेहरे पर ऐसा रूप कि बड़े बड़े लोग नजरें झुका लें। इनसे मिलो, ये हैं बेगम ज़ोहरा खानज़ादा, आरेज की दादी। आरेज खुशदिली से अनाया को तारुफ देता हुआ बोला तो दादी ने मुस्कुराते हुए आरेज को देखा। मेरा तारुफ तो दे दिया, मगर इसका तारुफ कौन देगा? उनकी नज़र इसके पीछे खड़ी अनाया पर पड़ी, मगर उनकी मुस्कुराहट वहीं जम सी गई। ये अनाया है, हमने आज ही निकाह किया है। यह खबर सुनकर दादी का चश्मा नाक पर ज़रा नीचे से रखाया। उन्होंने अनाया को सर से पैर तक देखा। बॉय कट बाल, ढीली सफ़ेद शर्ट, नीली जीन्स, न सर पर दुपट्टा न गले में, पाँव में सफ़ेद स्नेकर्स। किसी भी जाविये से वो नई नवेली दुल्हन नहीं लग रही थी, बल्कि किसी टॉम बॉय की तरह खड़ी थी। दादी ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद आहिस्ता से आरेज की तरफ देखा। ये लड़की पसंद किया तुमने? वो बरहम सी हो गई। आरेज ने बिल्कुल सुकून से जवाब दिया, जी दादी। ये क्या किया तुमने आरेज? इसमें क्या खराबी है? वो झुंझुलाकर बोला। दादी ने हैरत से पलकें झपकाई। खराबी? उन्होंने दोबारा अनाया को देखा।
बेटा खराबी ढूंढने बैठूं तो सुबह हो जाएगी। अनाया ने फौरन गर्दन उठाई। अब उसे दादी बुरी लगने लगी। तुम्हें तो हमेशा मशरकी लड़कियां पसंद थी ना आरेस? उन्होंने उंगलियों पर गिनवाना शुरू किया। लंबे बाल, हिरनी जैसी आंखें, गोरा रंग, सुराहीदार गर्दन और कपड़ों में साड़ी, शलवार कमीज या कुर्ता पजामा। फिर उन्होंने एक नज़र अनाया पर डाली और माथे पर हाथ मारा। ये किस चिड़िया घर से अजीब मखलूक उठा कर ले आए हो? कहीं से भी कोई सर पैर नहीं मिल रहा। कमरे में चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। अनाया की आंखें गुस्से से फैल गई। अजीब मखलूक? वो दिल ही दिल में भड़क उठी। मैं इन्हें चिड़ियाघर से लग रही हूं। उसने बेख्तियार आरेस की तरफ देखा, मगर अगला मंजर देखकर उसका पारा मजीद चढ़ गया। आरेस पूरी कोशिश के बावजूद अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। अनाया तब सी गई। बहुत हंसी आ रही है ना? वो दिल ही दिल में दांत पीसती रही। आरेस ने खांसी का बहाना बनाकर खुद को संभाला, फिर संजीदा होते हुए दादी के पास जा बैठा। दादी, उसने नरमी से कहा, बस मुझे यही पसंद आ गई। दादी ने हैरत से उसे देखा। वाकई? जी, और मुझे उम्मीद है, उसने अनाया को गहरी नज़र से देखते हुए कहा, कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे रंग में ढल जाएगी। दादी ने लंबी सांस ली। आरेस, उनकी आवाज़ में तशवीश साफ महसूस हो रही थी। शादी सिर्फ पसंद से नहीं चलती, इस लड़की को घर संभालना आता भी है। आरेस ने एक लम्हे को अनाया की तरफ देखा। जवाब देने से पहले उसे खुद भी सोचना पड़ गया। अनाया ने फौरन बात संभाली। जी, मुझे आता है। दादी ने इसे घूरा। खाना पकाना आता है? जी जी, पका लेती हूँ। मसलन क्या क्या? अंडा बॉयल कर लेती हूँ और चाय भी। दादी ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। या अल्लाह, बस ये दिन देखना रहता था। आरेस ने होंठ भींचकर दोबारा हंसी रोकने की कोशिश की। अनाया ने इस बार उसे खूनख्वार नजरों से देखा। आरेस ने फौरन बात बदल दी। दादी, हर इंसान सीखता है, इसे भी मौका दे दीजिए। मुझे यकीन है ये आपको कभी मायूस नहीं करेगी, उसने एतमाद से कहा। दादी खामोश रही। उन्होंने दोबारा अनाया को देखा। वो बहू कम, तूफान ज्यादा लग रही थी। कई लम्हे गुजर गए। आखिरकार दादी ने गहरा सांस लिया। ठीक है, उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं फिलहाल कुछ नहीं कहूंगी। फिर उन्होंने अनाया की तरफ देखा और चुप हो गई। आरेस और अनाया के जाते ही ड्राइंग रूम पर अजीब सी खामोशी छा गई। बेगम ज़ोहरा खानज़ादा चंद लम्हे वहीं बैठी रहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। दरवाज़ा बंद करते ही उन्होंने गहरा सांस लिया। उनके चेहरे पर उलझन साफ लिखी हुई थी। वो कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक बेचैनी से टहलने लगी। नामुमकिन, उन्होंने आहिस्ता से खुद से कहा, ये हो ही नहीं सकता। उनके जहन में बार बार आरेस का चेहरा घूम रहा था। वही आरेस जो शादी के नाम से ही चिढ़ जाता था, जो हर बार एक ही जुमला कहता था, शादी एक आउटडेटेड इदारा है। दादी, दो लोग कागज़ के एक टुकड़े पर दस्तखत करके सारी ज़िंदगी खुश नहीं रह सकते। और आज वही लड़का अचानक शादी करके उनके सामने खड़ा था, वो भी ऐसी लड़की से जिसका जिक्र उसने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। इतनी जल्दी? उन्होंने हैरत से सर हिलाया। ये कैसे मुमकिन है? चलते चलते वो रुक गई, फिर दोबारा चलने लगी। कमरे में सिर्फ उनके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। चंद मिनट बाद वो थक कर अपनी पसंदीदा रॉकिंग चेयर पर बैठ गई। कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगी, मगर उनके जहन में तूफान बरपा था। अचानक जैसे कोई ख्याल बिजली बनकर उनके दिमाग में कूद गया। वो फौरन सीधी होकर बैठी। या अल्लाह, उन्होंने जल्दी से मेज़ पर रखा मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल कर दिया। चंद सेकंड बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम। दादी ने सलाम का जवाब ज़रूर दिया, मगर उनके लहजे में सख्ती नुमाया थी। ज़ुबैर? जी दादी। मुझे सच सच बताओ। उन्होंने एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया।
کیا تم نے وصیت کے حوالے سے آریز سے کوئی بات کی تھی؟ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر زبیر کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، نہیں دادی، مجھے کیا ضرورت تھی، میں کیوں بتاؤں گا؟ دادی مزید شکی ہو گئی۔ اچھی طرح سوچ کر جواب دینا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، زبیر نے فوراً کہا، میں نے آریز سے اس موضوع پر ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ دادی نے گہرا سانس لیا مگر ان کا شک کم نہ ہوا۔ سن لو زبیر، ان کی آواز پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی، اگر مجھے ذرا بھی پتہ چلا کہ تم نے وصیت کے بارے میں آریز کو کچھ بتایا ہے، وہ چند لمحے خاموش رہی، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دادی اب بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں۔ مگر دادی نے اس کی بات مکمل ہونے ہی نہ دی، انہوں نے خاموشی سے کال کاٹ دی۔ فون بند ہوتے ہی وہ دوبارہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ان کی بے چینی اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ زبیر اس شہر کا سب سے مشہور وکیل تھا اور خانزادہ خاندان کا قانونی مشیر بھی، وہ آریز کا کلاس فیلو بھی تھا۔ اگر خاندان میں وصیت کی تفصیلات کوئی جانتا تھا تو وہ صرف زبیر تھا، اسی لیے سب سے پہلے شک بھی اسی پر گیا تھا۔ لیکن اس کی آواز سن کر رہنے لگا شاید وہ سچ بول رہا تھا۔ پھر آخر آریز نے اچانک شادی کیوں کی؟ یہ سوال ان کے ذہن کو مسلسل کھائے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ماضی میں کھو گئی۔ انہیں وہ 10 سال کا آریز یاد آیا جو ہر رات اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ باہر اس کے ماں باپ کی چیخیں، جھگڑے اور الزام تراشیاں جاری ہوتی۔ وہ بچہ کانوں پر تکیہ رکھ کر بھی وہ آوازیں روک نہیں پاتا تھا۔ پھر ایک دن ان کے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ چند ہی مہینوں بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ آریز کئی دن تک کسی سے بات نہیں کرتا تھا، وہ صرف کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا رہتا۔ اور جب اس کے باپ نے بھی دوسری شادی کر کے بیرون ملک مستقل رہائش اختیار کر لی، تب جیسے آریز کے اندر موجود آخری امید بھی مر گئی تھی۔ اسی دن اس نے پہلی بار کہا تھا، دادی، شادی محبت نہیں دیتی، صرف تکلیف دیتی ہے۔ وہ جملہ آج بھی دادی کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ انہوں نے خود اسے اپنی گود میں پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اس کی ہر خاموشی، ہر ضد، ہر کمزوری وہ سب جانتی تھی، اسی لیے وہ یقین سے کہہ سکتی تھی، یہ لڑکا اپنی مرضی سے اچانک شادی کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ضرور کوئی وجہ تھی، کوئی ایسی وجہ جو ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر گہری سوچ میں ڈوبی نظروں سے دیوار کو تکا، پھر انہوں نے آہستہ سے سرگوشی کی، تم کچھ چھپا رہے ہو آریز، لیکن میں جان کر رہوں گی کہ آخر وہ ماجرا کیا ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود ہی خاموش ہو گئی۔ ان کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا، نہ کوئی دلیل، اور نہ ہی ایسا کوئی جال تھا جس کے ذریعے وہ آریز کو پکڑ سکتی۔ فی الحال انہیں صرف انتظار کرنا تھا، کیونکہ بعض راز وقت خود کھولتا ہے۔ کمرے میں آتے ہی ان دونوں نے ایک ساتھ سکھ کی سانس لی۔ چند لمحے پہلے تک ڈرائنگ روم میں وہ ایک مثالی نوبیاہتا جوڑے کا کردار ادا کر رہے تھے، مگر دروازہ بند ہوتے ہی دونوں کے چہروں کے تاثرات بدل گئے۔ عنایا نے پورے کمرے پر ایک نظر دوڑائی۔ وسیع کمرہ، ایک کنگ سائز بیڈ، سامنے صوفہ، بالکنی اور دیوار کے ساتھ بڑی سی الماری۔ اس کی نظریں جا کر بیڈ پر رک گئیں۔ اسی لمحے آریز بھی اسی طرف بڑھا۔ تبھی دونوں تقریباً ایک ساتھ بولے، میں بیڈ پر سوں گی، میں نے بھی بیڈ پر ہی سونا ہے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر دونوں نے ایک دوسرے کو گھورا۔ آپ صوفے پر سو جائیں، عنایا نے رسان سے کہا، لیکن آریز نے بے نیازی سے جواب دیا، یہ میرا کمرہ ہے۔ تو بیڈ بھی میرا۔ عنایا نے طنزیہ انداز میں سر ہلایا۔ واہ، کیا زبردست منطق ہے۔ آریز نے بھی فوراً جواب دیا، شکریہ، میں صوفے پر نہیں سو سکتی۔ کیوں؟ میری کمر میں درد ہو جائے گا۔ تو میری کمر لوہے کی بنی ہے۔ عنایا نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ دیے۔ دیکھیں، مجھے بحث نہیں کرنی۔ مجھے بھی نہیں۔ تو پھر آپ صوفے پر سو جائیں، اور اگر نہ سوں
तो मैं बेड नहीं छोड़ूंगी। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। फिर जो करना है कर लो। अनाया ने गुस्से में तकिया उठाया और सीधा बेड पर फेंक दिया। मैं यहीं सो रही हूं। आरेज ने भी दूसरा तकिया उठाकर उसी बेड पर रख दिया। और मैं भी। क्या मतलब? मतलब साफ है। अनाया ने हैरत से उसे देखा। एक बेड पर? आरेज ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। तुम ही तो कह रही थी बेड नहीं छोड़ूंगी। अनाया का चेहरा सुर्ख हो गया। आप बहुत बदतमीज हैं, और तुम बहुत तमीजदारी में रहकर शोर मचा रही हो ना। मैं शोर मचाती हूं? उसकी आवाज बुलंद हो गई। जी हां। आरेज की भी आवाज ऊंची हो गई। पहले फ्रॉड, अब बेड पर कब्जा। कब्जा? अनाया तकरीबन चीख पड़ी। ये बेड सिर्फ आपकी जागीर नहीं है, लेकिन मेरी दादी की जागीर जरूर है। आरेज ने दांत पीसते हुए कहा। तो जाकर दादी के पास ही सो जाइए। उसी लम्हे बाहर से दस्तक हुई। दोनों के चेहरे का रंग एक साथ बदल गया। आरेज, दादी की आवाज आई। ये शोर कैसा है? अनाया और आरेज ने एक दूसरे को देखा। अब क्या होगा? अनाया ने सरगोशी की। खामोश रहो। ये तंबी करके आरेज ने फौरन दरवाज़ा खोला तो दादी दरवाजे पर खड़ी थी। चेहरे पर नागवारी साफ झलक रही थी। ये क्या हो रहा है? उन्होंने अंदर झांका। अनाया एक तरफ खड़ी थी, मुंह फुलाए, चेहरा गुस्से से सुर्ख। आरेज ने एक सेकंड भी ज़ाया नहीं किया। वो फौरन अनाया के करीब आया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके कंधों के गिर्द बाजू रख दिए। अचानक इस कुर्बत पर अनाया जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। वो हैरत से उसे देखने लगी। आरेज होंठों पर मुस्कुराहट सजाए बोला, दादी, हम बस सोने की तैयारी कर रहे थे। दादी ने मशकूक नज़रों से दोनों को देखा। हाँ तो सो जाओ। फिर उन्होंने भवें सुकेड़ी। मगर इतना शोर क्यों कर रहे हो? आरेज ने गर्दन खुजाई। वो दादी, जाहिर है किसी लड़की के साथ कमरा शेयर करने की आदत नहीं है ना। दादी ने आंखें सुकेड़ी। तो थोड़ा एडजस्ट होने में वक्त लग रहा है। दादी ने हाथ बांध दिए। तो क्या यूं शोर शराबा करके हमारी नींदें आराम करोगे? फिर उनकी नज़र बेड पर पड़ी। ये बेड का क्या मामला है? आरेज ने बगैर पलक झपकाए जवाब दिया। वो दादी ये कह रही थी कि मैट्रेस ठीक नहीं है। अनाया की आंखें हैरत से फैल गई। मैंने कब कहा? वो बेख्तियार बोल पड़ी। आरेज ने फौरन उसका हाथ दबा दिया। दादी ने अनाया की तरफ देखा। मैट्रेस साथ लाना था ना बेटा, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो। अनाया का मुंह खुला का खुला रह गया। वो गुस्से से आरेज को घूरने लगी। आरेज नजरें चुराने लगा। दादी ने दोनों को एक बार फिर देखा। अच्छा अब आराम करो और खुदारा मजीद शोर मत करना, उन्होंने दरवाजे से निकलते हुए कहा। और हाँ लड़की, सुबह का नाश्ता तुम खुद बनाओगी। दरवाज़ा बंद होते ही आरेज ने फौरन उसके कंधे से बाजू हटाया। चंद सेकंड खामोशी रही, फिर वो गुस्से से उसकी तरफ मुड़ा। गला है या लाउड स्पीकर? उसने दबी आवाज़ में कहा। दादी वैसे ही ऊंचा सुनती हैं, मगर तुम्हारी सड़ी हुई आवाज़ उन तक भी पहुंच गई। कितना कान खाती हो तुम? अनाया ने फौरन दोनों बाजू सीने पर बांध लिए। और आप? वो तंजिया अंदाज में बोली। परले दर्जे के झूठे। आरेज ने हैरत से आंखें फैलाई। क्या झूठ बोला मैंने? मैट्रेस वाला झूठ क्या फरिश्ते बोलकर गए थे? आरेज ने होंठ सुकेड़े। हाँ तो क्या करता, और कुछ सूझा ही नहीं। अनाया ने गुस्से में तकिया उठाकर बेड पर पटक दिया। आपसे बड़ा ड्रामेबाज मैंने आज तक नहीं देखा। शुक्रिया, आरेज ने बेनियाजी से जवाब दिया। फिर अपना तकिया उठाया। वैसे भी तुम्हारे साथ एक बेड पर सोने का कोई शौक नहीं है मुझे। वो सोफे की तरफ बढ़ते हुए बोला तो अनाया ने फौरन जवाब दिया। और मुझे कौन सा है? गुस्से से पैर पटकती हुई बेड पर जा बैठी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ पीठ कर ली। कमरे में खामोशी छा गई, मगर नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। सुबह की हल्की धूप पर्दों से छनकर कमरे में आई तो अनाया एकदम उठकर बैठ गई। आरेज पर निगाह गई जो आड़ा तिरछा सोफे पर लेटा था। उसे यूं लेटे देखकर इसे तरस भी आया और दादी का हुक्म भी याद आया, तो वो फौरन बिस्तर से उठी
और आरेस को आवाज़ें देने लगी, मगर वो तो जैसे घोड़े बेचकर सोया हुआ था। वो झिझकते हुए उसके करीब गई, आहिस्ता से उसके कंधे को हिलाया। सुनिए आरेस, उठें। आरेस ने मंदी मंदी आंखें खोली। चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर बुरा सा मुंह बनाकर बोला, सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली, अब सारा दिन बुरा गुजरेगा। अनाया के नथने फूल गए। दिल चाहा वहीं तकिया उसके मुंह पर दे मारे, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद पर जब्त किया। दिन तो वैसे भी बुरा ही गुजरेगा। आरेज ने तकिए में मुंह छुपाते हुए पूछा, क्यों? क्योंकि दादी को अभी तक उनकी बहू किचन में नाश्ता बनाती नजर नहीं आई। ये सुनते ही आरेज को करंट सा लग गया। वो झटके से उठकर बैठ गया। क्या मतलब? अनाया ने बेबसी से कंधे उचकाए। मैं नाश्ता कैसे बनाऊं? क्यों? क्योंकि मुझे कुछ पकाना ही नहीं आता। आरेज चंद लम्हे पलकें झपकता रहा। क्या मतलब कुछ नहीं आता? मतलब यही कि बॉयल अंडे के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। चाय पराठा? नहीं। आरेज ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। या अल्लाह, अनाया ने बेपरवाही से कहा, बस मैं ऐसी ही हूं। आरेज ने घड़ी देखी। अगर दादी को पता चल गया कि उनकी नई नवेली बहू को चाय तक बनानी नहीं आती तो नया मसला खड़ा हो जाएगा। वो फौरन बेड से उतरा। चलो मेरे साथ। कहाँ? किचन। लेकिन कोई नहीं। चंद मिनट बाद दोनों किचन में थे। आरिस ने फ्रिज खोला, पहले से गुंदा हुआ आटा निकाला और उसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर प्लेट में रख दिए। फिर बेलन उसके हाथ में थमा दिया। इन्हें बेलने की कोशिश करो। कोशिश? हाँ, गोल बन गए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो किसी मुल्क का नक्शा ही सही। अनाया ने उसे घूरा तो वो हल्का सा मुस्कुराया और तवे पर पराठा डालने लगा। उधर अनाया पूरी मेहनत से रोटी बेल रही थी, मगर वो कभी मुसल्लस बनती, कभी बेज़वी। आरिज ने एक नज़र डाली और हंसी रोकने के लिए होंठ भींच लिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बमुश्किल बोला। बस पहली बार ऐसा पराठा देख रहा हूँ। अनाया ने गुस्से से बेलन मेज़ पर रखा। खुद ही बना लें। अरे बाबा, मजाक कर रहा था, वो जल्दी से बोला। इसी दौरान उसने अंडे तोड़कर ऑमलेट का मिक्सचर तैयार किया। ये लो, उसने प्याला अनाया के हाथ में दिया। जब मैं कहूँ तो तवे पर डाल देना। चंद लम्हे बाद ऑमलेट भी तैयार हो गया। आरिज ने एक लुक़मा तोड़ा, मुंह में रखा और अगले ही लम्हे उसका चेहरा अजीब सा हो गया। नमक कहाँ है? उसने हैरत से पूछा। डाला तो था, अनाया ने फौरन जवाब दिया। कहाँ डाला था? जहाँ आपने कहा था। कहाँ? अनाया ने मासूमियत से चाय की केतली की तरफ इशारा कर दिया। आरिज चंद सेकंड उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तुमने नमक चाय में डाल दिया? अनाया ने सर हिलाया। आपने कहा था नमक डाल दो तो मैंने डाल दिया। आरिज ने दोनों हाथों में अपना माथा पकड़ लिया। मेरे खुदा, तुम्हें इतनी भी सेंस नहीं कि चाय में चीनी डालते हैं, नमक नहीं। अनाया ने फौरन जवाब दिया। मैं चाय पीती ही नहीं, मुझे क्या पता। आरिज ने हैरत से उसे देखा। एक तरफ कहती हो मिडिल क्लास फैमिली से हो, दूसरी तरफ बातें बिल्कुल बर्गर बच्चों जैसी करती हो। मिडिल क्लास की लड़कियां तो खाना बनाने में बड़ी माहिर होती हैं। अनाया के चेहरे की शोखी एक लम्हे में मान पड़ गई। होती होंगी, वो धीरे से बोली, लेकिन मैं नहीं हूं। क्यों? चच्ची ने कभी किचन में घुसने ही नहीं दिया। आरिज चौंका। पता नहीं क्यों, पहली बार उसे इस लड़की के लिए हमदर्दी महसूस हुई। शायद इसलिए कि वो खुद भी रिश्तों की महरूमी झेल चुका था। माँ बाप दोनों जिंदा थे, मगर कभी इसके ना हुए। वो इन्हीं ख्यालों में गुम था कि अचानक उसकी नज़र ऑमलेट पर पड़ी और फिर बेइख्तियार हंस पड़ा। अनाया ने हैरत से देखा। अब क्या हुआ? वो हंसते हुए बोला, ऑमलेट में नमक नहीं है बल्कि चीनी है। अनाया ने ऑमलेट चखा और अब दोनों ही अपनी हिमाकतों पर हंसने लगे। किचन की खिड़की से यह मंजर देखती दादी के लबों पर बेइख्तियार इत्मीनान भरी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार आरिज को इस तरह बेफिक्री से हंसते देखा था। उनकी नज़रें फिर अनाया पर जा ठहरी। कुछ तो है इस टॉम बॉय में जिसने मेरे खामोश आरिज को हंसा दिया। वैसे है सुंदर, मासूम सी, उन्होंने आहिस्ता से खुद से कहा और उसकी बलाएं लेने लगी।
یا اللہ میرے آریز کو ہمیشہ ہنستا رکھنا، اس نے ساری زندگی بڑی کڑن دیکھی ہے، اب اس کی زندگی میں سکھ بھر دے۔ خوشی کے آنسو ان کی آنکھوں میں جھلملانے لگے۔ وہ دعائیں دے کر جو ہی مڑی، اچانک ان کے سینے میں شدید درد اٹھا اور ان کا ہاتھ بے اختیار دل پر چلا گیا اور آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ وہ کرا اٹھی اور ایک دم ان کے لبوں سے آریز کا نام نکلا، آریز، اور پھر وہ سنبھل نہ پائی۔ اگلے ہی لمحے ان کا وجود لڑکھڑایا اور وہ فرش پر گر گئی۔ دادی! آریز کی چیخ پورے گھر میں گونج گئی اور وہ دوڑتا ہوا باہر آیا۔ انایا بھی گھبرا کر اس کے پیچھے بھاگی۔ دونوں نے مل کر دادی کو سنبھالا۔ آریز کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گاڑی نکالو۔ چند ہی منٹوں بعد گاڑی اسپتال کی طرف دوڑ رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر انایا دادی کا سر گود میں رکھے مسلسل ان کے ہاتھ رگڑنے لگی۔ دادی پلیز آنکھیں کھولیں۔ آریز کی خوف سے بھری آواز سن کر انایا کے دل کو ایک دھکا سا لگا۔ وہ بھی تو اسی کی طرح رشتوں کے معاملے میں بالکل تہی دامہ تھی، لیکن وہ اس کے معاملے میں تھوڑا سا بہتر اس صورت میں تھا کہ اس کے پاس دادی کا کمزور وجود ہی صحیح لیکن موجود تو تھا، اور اس کی تڑپ دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ اس کی دادی کو کچھ نہ ہو۔ آریز نے شاید پوری زندگی میں پہلی بار گاڑی اتنی تیز چلائی تھی۔ وہ اسپتال پہنچے تو دادی کو فوراً ICU میں پہنچایا گیا۔ چند گھنٹوں بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب خطرہ ٹل گیا ہے۔ دونوں نے ایک ساتھ سونگ کا سانس لیا۔ ہوش میں آنے کے بعد دادی نے سب سے پہلے ایک ہی نام لیا، زبیر کو بلاؤ۔ چند گھنٹوں میں زبیر اسپتال پہنچ گیا۔ دادی نے کمزور آواز میں کہا، وصیت تیار کرو۔ زبیر چونک گیا، کیسی وصیت؟ میری ساری جائیداد آریز کے نام لکھ دو۔ انہوں نے کمرے کے شیشے سے باہر کھڑے آریز کی طرف محبت سے دیکھا۔ زبیر نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ دادی ابھی ایسی باتیں کیوں؟ انہوں نے آہستہ سے مسکرا دیا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں زبیر۔ ان کی نظریں آریز پر جم گئی۔ ابھی ابھی تو یہ خوش ہوا ہے، میں چاہتی ہوں جلد از جلد سب کچھ اس کے حوالے کر دوں تاکہ سکون سے آنکھیں بند کر سکوں۔ زبیر نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وصیت کی خبر آریز تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ وہ اسپتال کے کوریڈور میں خاموش کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا، دادی کی شرط پوری ہو، جائیداد اس کے نام ہو، اور پھر ایک ماہ بعد انایا آزاد۔ مگر نہ جانے کیوں جیسے ہی اس نے انایا کو چھوڑنے کا تصور کیا، اس کے سینے میں عجیب سا درد اٹھا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ آخر مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اتنی بڑی جائیداد بھی اسے خوشی نہیں دے رہی تھی۔ ادھر انایا کو بھی پوری حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ دادی نے جائیداد کے لیے شادی کی شرط رکھی تھی اور اب شرط پوری ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب آریز بہت جلد اسے چھوڑ دے گا۔ یہ خیال آتے ہی اس کی سانس رکنے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ پھر پہلی بار خود سے سچ بولی، میں، اس کی آواز لرز گئی، آریز سے محبت کرنے لگی ہوں۔ یہ احساس کسی خوشی کی طرح نہیں آیا تھا بلکہ سزا بن کر آیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دل بھی آیا تو کس دشمن جاں پر۔ چند دن بعد دادی اسپتال سے گھر واپس آ گئی۔ اسی شام آریز نے انایا کو بالکنی میں تنہا کھڑا دیکھا تو اس کے پاس آ کر بولا، کچھ دن اور صبر کر جاؤ۔ انایا خاموش رہی۔ دادی ابھی ابھی اسپتال سے واپس آئی ہیں، اگر انہیں ابھی ہماری علیحدگی کا پتہ چلا تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ انایا نے نظریں جھکا لی، پھر کافی دیر بعد دھیرے سے بولی، چھوڑنا تو آپ نہیں ہے، میں نے تو نہیں۔ اس کی بات پر آریز ساکت رہ گیا۔ وہ پہلی بار اس جملے کے پیچھے چھپا درد محسوس کر سکا مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ 2 ماہ گزر گئے۔ دادی اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ ایک دن وہ انایا سے بولی، اب جلدی سے مجھے ایک ننھا سا آریز دے دو، میں سارا دن بہت بور ہوتی ہوں۔ انایا کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا۔ اسی شام آریز گھر لوٹا۔ جوتے اتار ہی رہا تھا کہ انایا آہستہ سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ اس سے پہلے کہ دادی ہم دونوں سے بہت ساری امیدیں باندھ لیں، انہیں حقیقت بتا دیتے ہیں۔ آریز نے سر اٹھایا۔ کون سی حقیقت؟ یہی کہ، اس کی آواز بھر آئی، آپ مجھے چھوڑنے والے ہیں؟
आरिस खामोशी से उसे देखता रहा, फिर निहायत सुकून से अपने जूते एक तरफ रखे और आहिस्ता से बोला, किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं? अनाया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो मुआयदा? आरिस चंद कदम चलकर उसके सामने आ गया, फिर नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखकर पहली बार अपनी सारी अना छोड़ दी। तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूं अनाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। जब भी तुम्हें छोड़ने का ख्याल आता है दिल लरस जाता है। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। आरिस ने भीगती आवाज़ में कहा, तुम रुक जाओ ना मेरी ज़िंदगी में। अनाया, तुम्हारा क्या जाता है? अनाया ने आहिस्ता से सर उठाया। पहली बार उसने आरिस की आंखों में आंसू देखे जो खामोशी से उसके गालों पर बह निकले। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था मगर हार रहा था। अनाया एक लम्हा भी खुद को ना रोक सकी और लपक कर उसके सीने से आ लगी। आरिस ने भी उसे मजबूती से अपने हिसार में ले लिया। मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ, अनाया ने रोते हुए कहा तो आरिस ने आंखें बंद कर ली। ऐसा लगा जैसे बरसों की तन्हाई, महरूमी और तशनगी मिट गई है। दरवाजे के बाहर खड़ी दादी ने दोनों को एक साथ देखा तो उनकी आंखें भी नम हो गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया, या अल्लाह, मेरे बच्चे के नसीब में उसे लिख दिया जो उसे बेपनाह चाहती है। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जाए नमाज बिछाई और सर सजदे में रख दिया। तो कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है।